अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Honorable guests, esteemed sir, my dear brothers and sisters, a very warm welcome to you on this platform of Show Your Skill on behalf of SS Academy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala of Almighty God be on all of you. I am Ruby Samani, your host. I assure you that this program will be soothing our hearts by listening to the angelic innocent voices of participants. So before starting this program, I would like to share one of the hadiths. अफ़ज़लुल इबादती क़िराअतुल कुरान, कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है. First of all, I would like to introduce our today's highly respectful guest with high profession, Albina Irfan Ansari ma'am. She has done Alma course and also done Montessori course. Right now she is teaching in Al Farid High School. So I would like to request Mifra to felicitate ma'am. So let's begin this program from Kirat. I would like to call Abdullah Asif to recite some verses of Holy Quran in his melodious voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا صدق الله العظيم. Next I would like to call Ansari Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر وسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما
هذله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. First, we welcome Mr. Ravish Momin sir, the founder of Success Academy, which offers tuition, classes, art, science, commerce with 25 years of teaching experience. And Mr. Ravish sir also founded Urdu Kitab Ghar while studying in college, showing his passion and both education and culture. Sheikh Hasnain Umar. Subhanallah, Subhanallah. ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहाँ, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहाँ, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम. Next participant is Ansari Fatima Ayman. अस्सलामुअलैकुम. रोज़ो शब जोश पे रहमत का है दरिया तेरा, रोज़ो शब जोश पे रहमत का है दरिया तेरा, सदक़े इस शान सखावत पे ये मंगता तेरा, हाथ उठे भी न थे और मिल गया सदका तेरा, वहाँ क्या जो दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा. आदाब अर्ज़ है मोहब्बत के रंग बिखरने आए हैं, शायरी के नूर से दिलों को रोशन करने आए हैं, महफ़िल गज़ल में आपका खैर मक़दम करते हैं, महफ़िल गज़ल में आपका खैर मक़दम करते हैं, अल्फाज के इस सफ़र में साथ चलने का शुक्रिया करते हैं. Ladies and gentlemen, invite his guests, teachers and my dear all friends. Assalamu alaikum. I am Mifra, your host. A very warm good evening to one and all present here. Celebrating of the timeless arts and of poetry and the enhancing beauty of the ghazal. Poetry has always been a mirror of our emotion and language of the soul. So, let me introduce our esteemed judge of today's event for the ghazal competition. Her name is Asna Badruzzama. She has done her master in pharmacy. She has lecturer and subject expert, and she has melodious voice. I request to Jannat, please felicitate ma'am with a token of love and appreciation. जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता. ज़िंदगी एक किताब है, हर सफ़ा नया है। ज़िंदगी एक किताब है, हर सफ़ा नया है। हर मोड़ पर एक रंग का सिलसिला है। रुकना नहीं बस चलने का इरादा रख, रुकना नहीं बस चलने का इरादा रख। हर सफ़र में एक नई दास्तां का सिलसिला है।
Honorable Judge, respected teachers and all my dear friends. Assalamu alaikum. I am Sheikh Jannat, your host. Let me introduce our judge of storytelling, Momin Saim sir. He has done master in art. He is a motivational speaker, author, YouTuber, language trainer and content writer. I want to dedicate one couplet for Saim sir. आसान नहीं होता हर मुश्किल को समझना, आसान नहीं होता हर मुश्किल को समझना, हर राह को रोशन और हर दिल को बहलाना। साइम सर जैसे लोग यूं ही नहीं मिलते, साइम सर जैसे लोग यूं ही नहीं मिलते। वो सितारे हैं जो रातों में चमकते हैं। Now I would like to call Khan Adnan to felicitate Saim sir with a token of love. Audience, please give a big applause. Now I would like to call first participant of Ghazal, Ansari Fatima Ahmed. है शख्स यहाँ आरज़ी सरशार खबरदार, है शख्स यहाँ आरज़ी सरशार खबरदार, है शख्स यहाँ आरज़ी सरशार खबरदार। दुनिया है बड़ा हुस्न का बाजार खबरदार, दुनिया है बड़ा हुस्न का बाजार खबरदार। बुग़्ज़ो हसदो मकरो फरेब और तसापुर, बुग़्ज़ो हसदो मकरो फरेब और तकब्बुर, बुग़्ज़ो हसदो मकरो फरेब और तकब्बुर। तू आज भी इनमें है गिरफ्तार खबरदार, तू आज भी इनमें है गिरफ्तार खबरदार। दुनिया है बड़ा हुस्न का बाजार खबरदार। Now I would like to first participant of storytelling name is Ansari Rehan. Ansari Rehan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ansari Rehan Asrar Ahmed. मेरी कहानी का उन्वान है एक प्यासा शख्स। पुराने ज़माने की बात है, एक शख्स किसी सहरा में रास्ता भटक गया। वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था, लेकिन उसने हार ना मानी और पानी की तलाश में लगा रहा। उसे दूर एक झोपड़ी नजर आई। पानी मिलने की उम्मीद ने उसके अंदर एक नई तवानाई भर दी। वो झोपड़ी में दाखिल हुआ तो उसे हैंड पंप नज़र आया। उसने उसे चलाना शुरू किया, लेकिन हैंड पंप तो ना जाने कब से सूख चुका था। उसे उसकी मौत सामने नज़र आ रही थी। वो नाउम्मीद होकर ज़मीन पर लेट गया। अचानक उसकी नज़र छत से लटकी हुई एक बोतल पर गई। वो तेज़ी से उठा और बोतल उतार कर पानी पीने ही वाला था। उसकी नज़र बोतल से चिपके हुए एक कागज़ के टुकड़े पर गई। उसमें लिखा था, इस बोतल के पानी को हैंड पंप को चलाने के लिए इस्तेमाल करो और बोतल को भर कर रखना ना भूलना। वो शख्स अजीब सी कशमकश में मुब्तला हो गया। उसने अल्लाह का नाम लेकर हैंड पंप में पानी डालकर उसे चलाना शुरू किया, लेकिन फिर वो एक बार नाकाम हो गया, क्योंकि हैंड पंप से निकलने वाला पानी इतना गंदा था कि उसे पिया नहीं जा सकता था। उसे उसकी मौत सामने नज़र आ रही थी। वो मायूस होकर ज़मीन पर बैठ गया। उसके दिमाग में ख्याल आया कि दोबारा कोशिश की जाए। उसने गंदे पानी को हैंड पंप में डालकर उसे दोबारा चलाना शुरू किया। इस बार उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि हैंड पंप से निकलने वाला पानी बिल्कुल ठंडा और शफाफ था।
उसने जी भर कर पानी पिया और बोतल को भी भर कर छत से लटका दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वहाँ से रवाना हो गया। हमें इस कहानी से सबक मिलता है, हालात चाहे जैसे भी हों लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जज़ाकल्लाहु खैरन। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मोमिन कशवा। एक हलचल है मची मिस्र के ज़रदारों में, एक हलचल है एक हलचल है मची मिस्र के ज़रदारों में, किस कदर जोश है यूसुफ के ख़रीदारों में, किस कदर जोश है यूसुफ के ख़रीदारों में। जो भी पढ़ता है वो जो भी पढ़ता है वो हो जाता है दीवाना तेरा। जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में, जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में। पार्टिसिपेंट फॉर गज़ल खान फिज़ा। लौट आओ भुला कर ख़ताएं मेरी, लौट आओ भुला कर ख़ताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूँ अगर तुम कहो। लौट आओ भुला कर ख़ताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूँ अगर तुम कहो। दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी एक नज़र तुम ज़रा देख लो। दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी तुम ज़रा एक नज़र देख लो। खुद के भी ऐब तुमको नज़र आएंगे, खुद के भी ऐब तुमको नज़र आएंगे। आईना मैं दिखा दूँ अगर तुम कहो। लौट आओ बुला कर ख़ताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूँ अगर तुम कहो। क्या कहा ये अंधेरे न मिट पाएंगे, क्या कहा रोशनी अब न हो पाएगी। क्या कहा ये अंधेरे न मिट पाएंगे, क्या कहा रोशनी अब न हो पाएगी। दे के दिल का उजाला अंधेरों को मैं, दे के दिल का उजाला अंधेरों को मैं, रात को दिन बना दूँ अगर तुम कहो। लौट आओ बुला कर ख़ताएं मेरी, लौट आओ भुला कर ख़ताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूँ अगर तुम कहो। लौट आओ। Last participant name is Ansari Tufail.
मेहनत से है अज़मत के ज़माने ने नगी को, मेहनत से है अज़मत के ज़माने ने नगी को, बेकाविश सीना कभी नामवर न होने दिया। जनाब सदर, ज़ी वक़ार सामईन, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाई की जुरत करूँगा वो है मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। सामईन किराम, मेहनत ही वाहिद ज़मानत, कामयाबी की ज़मानत वाहिद मेहनत ही हो सकती है। मेहनत ही वो वजह है जिसके ज़रिए इंसान ने अपने आप के मसाइल हल किए। मेहनत ही वो वाहिद वजह है जिसके ज़रिए इंसान ने अपने आसानी के सामान पैदा किए। जब इंसान मुसलसल काविशों, अंथिक कोशिशों और जिद्दोजहद के बाद मैदान में आया, तब जाके उसने आसाइशों आराम के सामान पैदा किए। मेहनत ही है जिसके ज़रिए इंसान ने पहाड़ की चोटी को सर किया। मेहनत ही है जिसके ज़रिए इंसान ने एक बंजर ज़मीन को खोद करके उसके अंदर से न जाने कैसे मादनियात निकाले। मेहनत ही वो वाहिद कुंजी है जिसके ज़रिए इंसान ने समुंदरों की तह में जाकर उन ख़जानों को हासिल किया जिनका तसव्वुर भी अक्ल इंसानी में मुहाल था। जनाब सदर, आपको ये बात तस्लीम करना होगा कि मेहनत ही वो वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए कामयाबी मुमकिन है। एक किसान जब बीज बोता है, अपने खेत की हिफाजत करता है, उसका ख्याल रखता है, पानी देता है, तब जाके उसे अनाज मिलता है। अगर उसके बजाय किसान आराम से बैठा रहे और मेहनत ना करके सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दे तो उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। इसी तरह एक तालिबे इल्म जब अपने रातों की नींद कुर्बान करके, दिन का सुकून, याराने महफिल की बज़्म छोड़ करके जब किताबों में दिल लगाता है, दिनों रात मेहनत करता है, तब कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है। और ये बात मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की और अपनी उम्मत को इस बात का दर्स दिया और फरमाया मेहनत ही में अज़मत है। और खालिक़े कायनात का फरमाने आली शान है। सूरह नज्म में अल्लाह फरमाता है व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही हासिल होता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आज दुनिया में जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, इन्होंने हाथों पे हाथ रख करके मेहनत हासिल नहीं की, कामयाबी इनका मुकद्दर यूं ही नहीं बनी। आज औजे सुरैया पर इनका मकाम यूं ही नहीं है, बल्कि इन्होंने सालहा साल बल्कि सदियों तक मेहनत की है, तब आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। दुनिया की अक़वाम आलम की आप तारीख उठा करके देख ले, आपको कोई भी तारीख ये नहीं बताएगी कि इसने आराम से, सुकून से और चैन के ज़रिए कामयाबी हासिल की है, बल्कि हर तारीख हमें यही पैगाम देती है कि जो मेहनत करता है कामयाबी उसका मुकद्दर बनता ही है। तो आइए आज की इस महफिल में हम और आप ये अज़्म करें कि हम भी पूरी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने वतन का नाम करेंगे, वतन अजीज़ के नाम को रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से ऊँचा करेंगे, अपने मुआशरे को साले और नेक बनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हम सबको मेहनत की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी तक़रीर का इख्तिताम इस शेर से करूँगा कि हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, गुजरेगी जो दिल पे वो रकम करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। Now I would like to call Albina Irfan Ansari ma'am to share her experience and inspire us with her words. So please welcome her with a huge round of applause. अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज यहाँ इस प्रोग्राम में जो हमने बच्चों की क़िरात, नात, गज़ल, स्टोरी जो सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे माशरे में ऐसे टैलेंटेड बच्चे, हाँ यकीन नहीं आ रहा इनका सुनकर, इतना अच्छा इन्होंने पढ़ा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ा, बहुत खुशी हुई सुनकर। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको ऐसे ही कामयाबी अता फरमाए। I would like to call next Naat Judge Ravish Momin sir to share his experience and motivate us with his words.
अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इससे पहले भी आप लोगों को बताया गया था कि वक्त का ख्याल रखना है, और कुछ बच्चों ने इस बारे में कोताही कर दी। एक बच्ची है जो सेकंड प्राइज़ आ सकती थी सिर्फ, लेकिन वक्त उसका ज़्यादा होने की वजह से उसको सीधा डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो अगर चाहें तो मैं नाम उसका बता सकता हूँ, लेकिन अब वो खुद ही समझ जाएगी और बाकी लोग भी समझ जाएंगे कि उसका नाम यहाँ नहीं आया है तो किस वजह से नहीं आया है। तो वजह यही बनी है कि वक्त उसका ज़्यादा हो गया था। तो जो आप लोगों को ये चीज़ बोली जाती है, बार बार उसका ख्याल रखें कि जिस भी मुकाबले में आप हिस्सा लेते हैं, उस मुकाबले की जो शराइत है उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर नात का मुकाबला है तो उसमें आपको नात पढ़नी है, हमद नहीं पढ़नी है, कसीदे नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ नात पढ़नी है। अगर कभी मनकबत का मुकाबला हो तो इसमें सिर्फ मनकबत को पढ़ना है। Thanks a lot for guiding us. Now I would like to call Ghazal judge Asna ma'am to share her experience. थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से होंगे? एक हफ़्ता पहले ही मुलाकात हुई थी हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन वॉलंटियर्स के लिए प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर, जो पिछले हफ्ते से मेहनत किए जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी मेहनत रही है उनकी इस प्रोग्राम में, और मैं कब से देख रही हूँ कि सारे यहाँ वहाँ लगे हुए ही हैं, तो उनके लिए तो बनता ही है ये चीज़, ठीक है। तो अब आएंगे हम कंपटीशन पे। तो आज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बच्चा है जो हार के घर जा रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज सब जीते हैं, और इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। तो मैं ये सोच रही थी कि किसके मार्क्स कहाँ से बढ़ाऊँ और किसके मार्क्स कहाँ से काटूँ। जजमेंट मेरे लिए भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन इतना टैलेंट हमारे लोगों में है, ये सुनकर और ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई है। और इसी तरीके से हमको और आगे बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि ठीक है ये एज तक किया, आगे पता नहीं करना है नहीं करना है, ठीक है एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई, डिम हो गए, नहीं, इसी इंथुसियाज़म के साथ सारी ज़िंदगी हमको चलना है। अगर मैं गज़ल कंपटीशन की बात करूँ तो वेरी गुड, वेरी नाइस। लास्ट वीक भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, इस वीक भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसी तरीके से करते रहिए। और जो आज नहीं जीत पाए, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को उम्मीद नहीं हारनी है। मतलब ज़िंदगी बहुत लंबी है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है। इन चैलेंजेस से अपने आप की जो लाइट है, अपने आप का जो चार्म है, वो डिम नहीं करना है, ठीक है। Now next I would like to call Nizamuddin sir, a NAT judge, to share his experience. So please welcome with huge round of applause. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। माशाल्लाह आज के जो कंपटीशन के जितने भी मुकाबले हुए, इन शाही बच्चों ने जो परफॉर्मेंस पेश किया है, काबिल तारीफ़, काबिल सताइश हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। नात का जो मुकाबला जिसमें मैं जजिंग के जिम्मेदारियां निभा रहा था, काफ़ी टफ था माशाल्लाह। और एक नात जो थी ताजदार हरम, काफ़ी उसका मुश्किल तर्ज है। लोगों ने वही चॉइस किया जो मुश्किल है, हालांकि उसको एक आसान तर्ज भी है जिसको फरीद साबरी साहब ने गाया था या अवैस कादरी साहब ने गाया पढ़ा है, लेकिन वो आतिफ असलम का कर रहे जो कि बहुत टफ था उसका। तो आसान जो था उसको करते तो ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, और बहुत बच्चों ने वो नात पढ़ी ताजदार हरम। Now lastly I would like to call our sir Saim Momin sir as a judge of storytelling to share his experience. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आई थिंक देर वर 7 to 8 स्टूडेंट्स इन स्टोरी टेलिंग। तो बहुत अच्छा आपने स्टोरी नरेट की है। कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा नरेशन, बहुत अच्छा था उनका। देखो स्टोरी टेलिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ नरेशन। गिविंग स्पीच इज़ डिफरेंट, नरेटिंग स्टोरी इज़ डिफरेंट थिंग, राइट। स्टोरी बोलना एक अलग चीज़ है और स्पीच बोलना एक अलग चीज़ है। स्टोरी टेलिंग इज़ एन आर्ट। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक आर्ट है और उस आर्ट को बखूबी निभाया है कुछ स्टूडेंट्स ने, उनको प्राइज़ डेफिनेटली मिलेगा। और जब आप स्टोरी बोल रहे हो या कुछ भी चीज़ें आप बोल रहे हो, वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर पेस। कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, राइट। जब आप स्टोरी नरेट कर रहे हो, यू हैव टू कीप नॉर्मल पेस। जैसे अभी मैं कैसे बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको स्टोरी नरेट करना है। कुछ बहुत ज़्यादा स्पीड थे, राइट। तो आप जब स्टोरी नरेट कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत ज़रूरी है कि आप नॉर्मल पेस के साथ स्टोरी का नरेट करो। और जैसा मैंने कहा कि नरेशन के साथ साथ स्टोरी में आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जेस्चर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके प्रॉपर जेस्चर्स होना चाहिए। अब आई कांटेक्ट भी होना चाहिए। एक बच्चे ने स्टोरी बहुत अच्छी नरेट किया, लेकिन पूरी स्टोरी नहीं उसमें, और उसने ऑडियंस को देखा ही नहीं, वो आई कांटेक्ट ही नहीं किया उसने। स्टोरी, उसका नरेशन अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, जेस्चर्स बहुत अच्छे थे, बट आई कांटेक्ट वाज कम्प्लीटली मिसिंग थ्रू आउट हिज स्टोरी। हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सोलेशन प्राइज से। जिन बच्चों को कॉन्सोलेशन मिले, स्टोरी टेलिंग में कॉन्सोलेशन प्राइज है और वो जाता है आगा आयशा को। कॉन्सोलेशन प्राइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुतुबुद्दीन शाहिद सर को कि कॉन्सोलेशन प्राइज दे। एवरीवन क्लैप। अब वक्त आ गया आपको अपनी एनर्जी दिखाने का। कॉन्ग्रेचुलेशंस आगा आयशा। सर 2 प्राइजेस और देने आपको। गज़ल में एक कॉन्सोलेशन प्राइज जाता है खान फिज़ा को। खान फिज़ा। उसके बाद नात में काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स ने, तो इसमें 2 कॉन्सोलेशन प्राइजेस है। पहला कॉन्सोलेशन प्राइज है शेख हसनैन उमर। शेख हसनैन उमर। उसके बाद दूसरा कॉन्सोलेशन प्राइज है शेख यास्मीन। जी जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। अब हम लोग आएंगे सेकंड और थर्ड और फर्स्ट प्राइज़ की तरफ। अब इसमें आपको ट्रॉफ़ी है और सर्टिफिकेट भी है सेकंड और थर्ड प्राइज़ में। तो सबसे पहला सेकंड प्राइज़ जो है वो हम नात से स्टार्ट करते हैं। सेकंड प्राइज़ इन नात कंपटीशन गोज़ टू अंसारी फातिमा ऐमन। अंसारी फातिमा ऐमन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रवीश सर से कि प्लीज़ कम ऑन स्टेज। तालियां बजते रहना चाहिए। नेक्स्ट, अंसारी फातिमा ऐमन गॉट सेकेंड प्राइज इन नात कंपटीशन। उसके बाद थर्ड प्राइज जो है नात कंपटीशन में, उनका नाम है अंसारी वानिया। अंसारी वानिया। अंसारी वानिया मोहम्मद नाजिम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा निज़ामुद्दीन सर से कि थर्ड प्राइज दे नात कंपटीशन का। ज़ोरदार तालियां होना चाहिए। नात कंपटीशन के बाद किरात, बहुत अच्छी किरात सारे स्टूडेंट्स ने किए। उनमें से 2 बच्चों को चुना गया सेकेंड और थर्ड प्राइज़ के लिए, जिसमें से थर्ड प्राइज़ जिनको मिला है उनका नाम है
अंसारी यूसुफ जयान मोहम्मद जाकिर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अलबिना मैडम से कि प्लीज़ कम ऑन स्टेज एंड गिव दिस अवार्ड टू अंसारी यूसुफ जयान मोहम्मद जाकिर। थर्ड प्राइज। एक तालियां नहीं बज रही है। मैडम सेकेंड प्राइज़ भी देना है आपको। सेकेंड प्राइज़ जिस बच्चे को गया है उसका नाम है अब्दुल्ला आसिफ अंसारी। बहुत अच्छी किरत इन्होंने की है, तालियां होना चाहिए इनके लिए भी। सेकेंड प्राइज़। थैंक यू सो मच मैडम। अब हम आते हैं गज़ल कंपटीशन की तरफ, जिसमें काफ़ी 6 to 7 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से एक कंसोलेशन प्राइज़ गया है खान फिज़ा को और सेकेंड और थर्ड प्राइज़ इसमें। तो थर्ड प्राइज़ जिनको गया है उनका नाम है, क्या नाम हो सकता है उनका? एनी गेसेस? मोमिन कशवा बरीन अबरार अहमद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा असना मैडम से कशवा को ये प्राइज़ दे। थर्ड प्राइज़ मैडम सर्टिफिकेट। सेकेंड प्राइज़ इन गज़ल जो काफ़ी मदमस्त हो के अपनी गज़ल पेश कर रहे थे, अंसारी फातिमा अहमद। Now we are moving towards storytelling. जी हाँ मैडम अपनी तरफ से कैश प्राइज उनको देना चाहते हैं आज। अरे थैंक यू सर। उम्मीद है आप इसमें से कुछ हिस्सा दूसरे वॉलंटियर्स के साथ भी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम। अब हमारे पास स्टोरी टेलिंग के सेकेंड प्राइज़ है और इसी में एक फर्स्ट प्राइज़ है। सेकेंड प्राइज़ जिस बच्चे को गया है उसका जो वे ऑफ स्पीकिंग था एज अ स्टोरी टेलर, जैसे मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ नरेट की है, वहाँ देखो आप लिखा भी है ट्रेनर के नीचे स्टोरी टेलर, और मैंने इस पर सेशंस अटेंड किए, मैंने इसको सीखा है हाउ टू नरेट स्टोरी। तो जो बच्चे ने जो स्टोरी नरेट की, जो वे ऑफ स्पीकिंग था स्टार्ट टू एंड, वो बहुत अच्छा था। और जब वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप देखना कि उसने बहुत अच्छे अंदाज में वो नरेशन को फॉलो किया, जिसका नाम है अंसारी रेहान असरार अहमद। सेकेंड प्राइज़ अंसारी रेहान। ये इतना छोटा सी बच्चा, इसने बहुत अच्छे से वो स्टोरी नरेट की पानी वाली। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुतुबुद्दीन शाहिद सर को एक बार और कि सेकेंड प्राइज़ दे। एवरीवन क्लैप फॉर दिस लिटिल बॉय। सर तालियां बजनी चाहिए बच्चे के लिए। अब फर्स्ट प्राइज़ जिनको गया, सर एक फर्स्ट प्राइज़ भी आपको देना है। फर्स्ट प्राइज़ जिनको गया है और जिनकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, और आफ्टर टेकिंग द फीडबैक ऑफ फ्रॉम ऑल द जजेस वी हैव chosen this participant for first prize, and there is a beautiful trophy you can see, cash amount also 1000 rupees, जिसमें कंटेंट जो था वो बहुत अच्छा था। ऐसा ज़रा भी एक सेकेंड के लिए भी नहीं लगा कि कहीं इम्परफेक्शन आया हो बॉडी लैंग्वेज में, वे ऑफ स्पीकिंग में, और कोई वर्ड का हेर फेर में। आई डिडंट फाइंड एनीथिंग, एंड आफ्टर ऑल द फीडबैक वी हैव चूजन दिस बॉय फॉर फर्स्ट प्राइज, एंड हिज और हर नेम इज़, मैं इसलिए इज़र लगा रहा हूँ कि आप समझ ना पाओ, वैसे बहुत ज़्यादा गेस करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू गॉट to know that who is going to get first prize, and his name is Ansari Tufail Muhammad Aslam. इनका जो कंटेंट था, जो डिलीवरी थी, जो वे ऑफ स्पीकिंग था, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। सर सर्टिफिकेट फर्स्ट प्राइज एवरीवन।
थैंक यू सो मच सर। अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको प्राइज़ मिला है उनके साथ एक ग्रुप फ़ोटो होगा, और जिनको प्राइज़ नहीं मिला है डोंट बी डिसहार्टेंड, आप यहाँ तक आए, फाइनल राउंड में आए, बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने मैच हारा था वर्ल्ड कप में, अगेंस्ट विच टीम? T20 वर्ल्ड कप, किस टीम के अगेंस्ट? नहीं, अभी ये लास्ट टू लास्ट वाला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारा था, जो ट्रेविस हेड ने जो बैटिंग की थी। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें क्या हुआ? इंडिया वोन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया ने वर्ल्ड कप को जीता। तो रोहित शर्मा जो कैप्टन है इंडिया के, उन्होंने कहा था कि जो कमी लास्ट टाइम पूरी नहीं हो पाई थी, इस टाइम हमने पूरी कर दी और वो वर्ल्ड कप हमने जीत लिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक मौका अगर आपसे छूट गया, एक मौके में आपको प्राइज़ नहीं मिला तो आगे प्राइज़ नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन कंपटीशन है, 19-20 का फ़र्क भी आपको कहीं ना कहीं प्राइज़ से महरूम कर देता है। लेकिन आप प्राइज़ से महरूम हुए हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बरकरार है ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुद एतमादी है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक करेज जो है वो बहुत अच्छी बात है। सो डोंट बी डिसहार्टेन, बहुत सारे मौके आएंगे। अभी हम लोग रिपब्लिक डे पे भी आपके लिए एक प्रोग्राम लाएंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि आप सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस इवेंट, शो योर स्किल। एक ऐसा कंपटीशन जो 3 हफ्ते से मुसलसल चल रहा है, नेक्स्ट वीक से हम भी थोड़ा सी अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे, बिकॉज वी हैव बीन बिजी फॉर लास्ट 3 वीक्स। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द जजेस जो हमारे साथ बने रहे पूरे 3 हफ्ते तक, और बहुत इन्होंने कोऑपरेट किया। बहुत सारे मतलब चीज़ें थी जो इन्होंने सपोर्ट किया हमको उन सारी चीज़ों में, और अपना बहुत कीमती वक्त दिया इन्होंने। तो एक बार जजेस के लिए जोरदार ताली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द वॉलंटियर्स जो आई कार्ड पहने हुए आप दिख रहे हैं, एसएस एकेडमी के वॉलंटियर। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी हार्डवर्क किया है, जिसका रिज़ल्ट एक वॉलंटियर को मिला भी अभी थोड़ी देर पहले, और उम्मीद है कि बाकी दूसरे को भी इंशाल्लाह वो रिज़ल्ट मिलेगा। Not in the form of money, at least in the form of appreciation, in the form of courage, in the form of confidence. हाँ, वो वही मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे कि कितने लोगों को कितना है, डिवाइड कर रहे हैं। सॉरी, आई एम वीक एट मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच। अगर इवनिंग का प्रोग्राम आप में से कोई देखना चाहता है तो वहाँ पे इतने पार्टिसिपेंट्स नहीं है, आप आ सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। स्पेशली मोनो एक्ट बहुत शानदार कर रहे हैं बच्चे, मोनो एक्ट वगैरह बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कैलीग्राफी में भी बहुत स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द जजेस, थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट ऑल द प्राइज विनर्स टू प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, और जजेस ऑल्सो। First of all, I would like to introduce our today respectful guest, Momin Azimuddin Mukhtar Ahmed. He is currently teaching in Momin Girls and Rois and Rafiuddin School. He has completed his studies from Aurangabad and Lucknow. He has done MA in Arabic. Now he also does the calligraphy of Urdu and English. I would like to call Sheikh Jannat to felicitate Azim sir. अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो 15 दिन पहले ऐसे ही कुछ महफिल जमी थी, बहुत ज़्यादा कैलीग्राफर थे उसके अंदर, फिर उसमें आप लोग को सिलेक्ट किया गया कि मेहनत करोगे तो रंग आएगा, समझे। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। इंसान हाथ में कलम ले और लिखना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे क़यामत आएगी कलम उसके हाथ में रहेगी। जब तक कि मेहनत नहीं करेगा, उसमें लगेगा नहीं, उसके अंदर जुनून पैदा नहीं होगा, तब तक के कोई भी हुनर में आप कामयाब नहीं हो सकते। कॉन्सोलेशन प्राइज़ जिनको गया है कैलीग्राफी में, उनका नाम है अंसारी तज़ीन इश्तियाक। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कॉन्सोलेशन प्राइज़ है अजीम सर, अंसारी तज़ीन इश्तियाक। काफ़ी अच्छा इन्होंने मल्टी कलर में लिखा है, लाइफ इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग यूर सेल्फ, इट्स अबाउट क्रिएटिंग यूर सेल्फ। कॉन्सोलेशन प्राइज़, प्लीज़ आ जाओ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फ़र्स्ट प्राइज़ जो है वो एक ही है जो
कैश अमाउंट है, वो उस लेवल पे अगर आपका मतलब उस लेवल पे आपको परफॉर्मेंस रहेगा तो मिलेगा, बिकॉज इट्स अ कैश अमाउंट। तो इसमें तो फर्स्ट प्राइज़ किसी को नहीं मिला है क्योंकि उस लेवल का कंटेंट और उस लेवल की कैलीग्राफी नहीं दिखी। हो सकता है सर ने जिनका नाम लिया, आप एक यहाँ पे भी देख सकते हो, एक बच्चे ने जो कैलीग्राफी की, ये जो लिखा हुआ है सक्सेस इज सिंपल, डू व्हाट इज़ राइट द राइट वे एट द राइट टाइम। ये बहुत इनकी 3 से 4 साल की प्रैक्टिस है। इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स सनाउल्ला। हाँ सर के पास ये शायद, हाँ अच्छा हाफिज थे वो, अरबी वगैरह पढ़ा। दूसरा नाम, थर्ड प्राइज़ जिनको मिला है कैलीग्राफी में, उनका नाम है अंसारी अलीना तनवीर अहमद। अंसारी अलीना तनवीर अहमद, क्लैप फॉर हर। सेकेंड प्राइज़ जो कि कैलीग्राफी का फर्स्ट प्राइज़ माना जाएगा, उनका नाम है अंसारी मिसबाह फातिमा मोहम्मद सलीम। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट। अंसारी मिसबाह फातिमा मोहम्मद सलीम, थैंक यू सर। अभी जैसा कि आपने देखा कि कंटेंट राइटिंग में 3 ही लोग थे, एक ने न्यूज़ पर लिखा है, एक ने पर्सनल डेवलपमेंट पे, एक ने हेल्थ। अच्छा है कि तीनों ने 3 अलग टॉपिक पे लिखा है। कुछ कंटेंट बहुत अच्छे हैं लेकिन जल्दी में शायद थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक भी है कुछ लोगों की। जब आप कंटेंट लिखते हो तो कंटेंट राइटिंग एक अलग चीज़ होती है और स्पीच एक अलग चीज़ होती है। तो आप जब कंटेंट लिखते हो तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि वो स्पीच के थ्रू जैसा ना लगे, उसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें प्रॉपर आपको लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन्स होनी चाहिए, है ना, इस तरह से आपका कंटेंट होना चाहिए। बट तीनों ने बहुत अच्छा लिखा है, हेल्थ पे भी बहुत अच्छा लिखा है, पर्सनल डेवलपमेंट जो मेरा फेवरेट टॉपिक है उस पर भी बहुत अच्छा लिखा गया, न्यूज़ पर भी 3 लोगों ने 3 अलग टॉपिक पे लिखा है। बट एक को मैंने चूज़ किया है जिनका नाम है शेख नीहा हफीज़। इनको जो है सेकेंड प्राइज़ दिया गया। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये इंट्रोडक्शन, फिर इन्होंने सोर्सेस लिखा है और उसका इम्पोर्टेंस लिखा है न्यूज़ का, उसके बाद लास्ट में जो कंक्लूजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंक्लूडिंग लाइन्स आपकी होना चाहिए, तो इस तरह से उन्होंने लिखा है। बाकी ऐसा नहीं कि ये इन दोनों ने अच्छा नहीं लिखा, इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है, बट 19-20 के फ़र्क से भी प्राइज़ में डिफरेंस आता है। सो क्लैप फॉर शेख नीहा हफीज़। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So let's begin this event with cube solving. So I would like to call our first participant, Yasin Sindhu. Wow, wonderful. Next is Ansari Adnan. Next question I would like to ask you, Usman. Who has written a famous play Romeo and Juliet? William Shakespeare. William Shakespeare is the correct answer. Next question I would like to ask on Farooqi. In which town was APJ Abdul Kalam born? Telangana. Telangana is the wrong answer. The correct answer is Tamil Nadu, Rameshwaram. He was born in Tamil Nadu, Rameshwaram.
Next question I would like to ask Usman. Which Indian woman won Olympic medal in badminton? The correct name is Saina Nehwal, who is a very famous female badminton who got medal in Olympic for India. India won first T20 World Cup in 2007. Against which team? It's very simple question. First T20 World Cup. Against which team? In 2007. Anyone who knows? Pakistan, a famous shot of Misbah-ul Haq, which made him out. And India won the World Cup. Yeah. No problem, but he played so well. I appreciate him. Clap for Usman. बहुत अच्छा. Very good. Take this. Khan Hamza. Who got third prize? Khan Hamza. He was very fast with his Afaq. Let's give him a prize. Clap for Khan Hamza. Adnan. आपको प्राइज देना है भाई. You have certificate also. After prize distribution you can take your certificate. Second prize जिस स्टूडेंट को मिला है उसने लास्ट टाइम भी 25 सेकेंड में कंप्लीट किया था. This time also in 25 seconds approximately. And he is second prize winner. His name is Yasin Sendo. Clap for him. Adnan. Khan Adnan, please give him a award. Next, in GK quiz, there was a very tough competition between On and Usman. And there was a tie also. So, Farooqi On won this competition in second round. So I request Farooqi On to please come and get his second prize. Second prize certificate. Everyone clap for him. देखो मोहम्मद उस्मान ने बहुत अच्छा compete किया और बहुत टफ दिया उनको. मतलब एक अच्छा कंपटीशन था, हेल्दी कंपटीशन था. तो हम लोग अपनी तरफ से उनको कॉन्सोलेशन प्राइज़ देना चाहेंगे क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्टिंग उनकी बहुत अच्छी थी. सो आई रिक्वेस्ट अफाक टू गिव कॉन्सोलेशन प्राइज़ टू मोहम्मद उस्मान. नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू उस्मान. Who has written a famous play Romeo and Juliet? William Shakespeare. William Shakespeare is the correct answer. मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारी ज़माने को साथ लेके चलो. I am Samani Ruby, your host for greeting card competition, and I would like to introduce our today's esteemed guest Ansari Shakira as a judge for greeting card. And Ansari Shakira, ma'am, as a greeting card judge. She is qualified LTD in 2007 and done commercial art handicraft from Mumbai, and also done AM in 2011, and in 2016 she has completed her BA. Currently she is teaching in Aksa Girls High School since 26 years. So I request Ramsha to felicitate ma'am with a token of love. So please give huge round of applause for her. अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आने पर. बच्चियाँ सब अपने सामने की है, मेहनत करती हैं. जो भी टॉपिक इस कंपटीशन में, ग्रीटिंग कंपटीशन में दिया गया था, अच्छा था, बहुत अच्छा था.
हमारे मोनो एक्ट के जज से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे आज के मोनो एक्ट के जज मोमिन जुल्फ़िकार अहमद सर हैं। सर ने BSc DMLT किया है, बट डायरेक्टिंग सर की हॉबी है। सर ने 300 से करीब नुक्कड़ नाटक किए हैं। 50 से ज़्यादा सर ने स्टेज प्ले एक्ट की है। 30 ड्रामा सर ने खुद डायरेक्ट किया है। 30 आज़ाद, स्वाभिमान, फ्यूचर, सुपर हीरो सर के मशहूर ड्रामे हैं। सर को 9 टाइम फर्स्ट बेस्ट प्ले अवार्ड से नवाजा गया है एंड 12 टाइम सर को सेकंड बेस्ट प्ले अवार्ड से नवाजा गया है। अब हम सर के जजमेंट एक्सपीरियंस की तरफ आते हैं। 16 टाइम सर ने मोनो एक्ट कंपटीशन में अपने जज के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। मैं साइंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मोमिन जुल्फ़िकार अहमद सर को फेलिसिटेट करें। तीन एक्ट थे यहाँ पर फाइनल में और तीनों ही ज़बरदस्त थे, मगर कुछ चीज़ें होती है बहुत माइनर सी होती है जिसकी वजह से हमारे पॉइंट्स जो है आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे जब डायलॉग्स हमारे आते हैं जहाँ पर हमारी बॉडी को और स्पीड होना चाहिए और अग्रेसिव होना चाहिए, वहाँ पर डायलॉग के साथ अगर वो चीज़ नहीं होती है तो वहाँ पर हमारे पॉइंट्स कट सकते हैं। ये इतना टफ था मामला सर कि बहुत ही माइनर, बहुत सोचना पड़ा मुझे। हालांकि मोनो एक्ट में इतना सोचना नहीं पड़ता है, तो बहुत ही माइनर चीज़ों से मैंने जो भी फर्स्ट सेकंड जो भी मैंने इसमें यहाँ पे डिसाइड किया है, बहुत छोटी चीज़ों से। इसके बाद आप वो चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। थर्ड अभी देखो, हमने जैसे पहले ही बहुत पहले जब फर्स्ट राउंड होने से पहले हमने बताया था कि फर्स्ट प्राइज़ जो है वो कैश अमाउंट है, तो वो किसी भी एक स्टूडेंट को मिलेगा ओवरऑल एक्टिविटी में। और मॉर्निंग में एक स्टूडेंट को मिल चुका है जिसने स्पीच स्टोरी टेलिंग में एक को मिला था, लेकिन हमने एक ही को बोला था। लेकिन अभी यहाँ पर परफॉर्मेंस ऐसे आ गए कि हम लोग अपनी तरफ से एक और फर्स्ट प्राइज़ दे रहे हैं। और फर्स्ट प्राइज़ कोई छोटा मोटा प्राइज़ नहीं है, छोटी सी ट्रॉफी है, वो सर्टिफिकेट नहीं है, इसमें 1000 रुपीज़ कैश है। तो आप में से किसी एक को और मिलेगा। ये हम लोग ने जो परफॉर्मेंसेस देखे, आपका जो आर्ट देखा, आपका जो टैलेंट देखा, उसके बाद हम लोग ने ये डिसाइड किया कि एक और फर्स्ट प्राइज़ देना चाहिए, तो ये हम लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अभी जो ग्रीटिंग कार्ड का जो मामला था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाकिरा मैडम से कि वो ग्रीटिंग कार्ड के प्राइजेस दे। और अदनान, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कम हियर। हाँ सर, मैं आपको बुलाता हूँ मैनुएट के। ग्रीटिंग कार्ड का जो 2 कॉन्सोलेशन प्राइज़ है, जिसमें से सेकेंड कॉन्सोलेशन जिस बच्ची को मिला है, सारे गर्ल्स ने ही दिया है ग्रीटिंग कार्ड। आई थिंक बॉय में कोई नहीं है ना? अच्छा, आपने दिया ग्रीटिंग कार्ड? अच्छा, आपका वो केक वाला था ना? अंसारी मिसबा फातिमा मोहम्मद सलीम, सेकेंड कॉन्सोलेशन। First consolation in greeting card goes to Ansari Mehwash Mohammad Salim.
ये आई थिंक दोनों बहनें हैं, राइट? मोहम्मद सलीम दोनों के नाम में है, तो आई थिंक बोथ आर सिस्टर्स. नाउ वी हैव थर्ड प्राइज और सेकेंड प्राइज इन ग्रेडिंग कार्ड. थर्ड प्राइज जिनको मिला है उनका नाम है अंसारी निदा अजीम. अंसारी निदा अजीम. नेक्स्ट थर्ड प्राइज दिया गया है. सेकेंड प्राइज इन ग्रीटिंग कार्ड जिनका मैसेज मैडम को बहुत पसंद आया और उनको सेकेंड प्राइज के लिए चूज किया गया. हर नेम इज, एनी गेसेस? शेख. कितने शेख हैं यहाँ पे? शेख मिसबा यूसुफ. थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच. अब आती है मोनो एक्ट के प्राइज विनर्स की बारी. तो मोनो एक्ट में 3 एक्ट है. अब जाहिर सी बात है ग्रेडिंग कार्ड में फर्स्ट नहीं मिला, तो मोनो एक्ट में ही इन तीनों में से किसी एक को फर्स्ट प्राइज़ मिला है. और एक चीज़ मैं और बताऊं कि जैसे फर्स्ट प्राइज़ की ट्रॉफ़ी हमने एक ही बनाई थी क्योंकि वो फर्स्ट प्राइज़ एक ही को देना था, लेकिन अभी हमने आप लोगों का परफॉर्मेंस देख के डिसाइड किया कि फ़र्स्ट प्राइज़ आपको देना है. तो कैश अमाउंट आपको मिल जाएगा. अभी कोई सी ट्रॉफ़ी हम लोग आपको दे देंगे, लेकिन वो रिप्लेस करके फर्स्ट प्राइज़ की जो ट्रॉफ़ी है वो आपको 3 से 4 दिन में आपको क्लासेस से कलेक्ट कर लेना है. मे बी आप थर्सडे आ जाओ, मे बी आप फ्राइडे आओ. थर्सडे या फ्राइडे आके जिनको भी फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, मेन तो कैश अमाउंट तो मिल रहा है ना आपको ऑन द स्पॉट, राइट? आपको सिर्फ जो फर्स्ट प्राइज़ की जो ट्रॉफ़ी है वो आपको आफ्टर 3-4 डेज आपको आके क्लासेस से कलेक्ट करना है. तो 3 नाम थे इसमें. आई होप वॉलंटियर्स आर रेडी विद द कैश अमाउंट एंड ऑल द प्राइजेस. अभी फ़िलहाल आपको थर्ड प्राइज़ की ट्रॉफ़ी ऐसी दी जा रही है, बट वो आपको रिटर्न कर देना है, फिर रिप्लेस करके हम लोग आपको फर्स्ट प्राइज़ की ट्रॉफ़ी दे देंगे. क्योंकि हमें एक ही को देना था फर्स्ट प्राइज़, इसलिए ट्रॉफ़ी एक ही बनी थी. ये समझो ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया गया. मार्क्स मैं आप लोगों का मार्क्स थोड़ा सी बताना चाहूँगा. जैसे देर वर 3 पार्टिसिपेंट्स, शेख आफरीन, अंसारी तहसीन, नसीम फातिमा. तो जैसा कि सर ने बताया आप लोगों की बहुत 19-20 का डिफरेंस था. तो जिनको हाँ नूरिन है तो नसीम फातिमा लिखा हुआ है यहाँ पे, नूरिन फातिमा है इनका. अच्छा, वो सर्टिफिकेट पे लिखने से पहले आपने बोल दिया. तो 3 पार्टिसिपेंट्स थे. अभी मत लिखो नाम, किसी का भी मत लिखो, जितने भी है मैं आपको बताता हूँ. तो 3 पार्टिसिपेंट थे जिसमें थर्ड पोजीशन पे जो आए हैं उनको जो मार्क्स मिला है 17 आउट ऑफ 20. सेकेंड पोजीशन पे जो आए हैं उनको जो मार्क्स मिला है 18 आउट ऑफ 20. फर्स्ट पोजीशन पे जो आया जिनको जो मार्क्स मिला है 19 आउट ऑफ 20. सो तीनों के बीच में 1-1 मार्क का डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस ने काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है. इसमें हम लोग एक कॉन्सोलेशन प्राइज़ भी देना चाहेंगे, क्योंकि कॉन्सोलेशन नहीं थर्ड प्राइज़ देना चाहेंगे. एक थर्ड प्राइज़ देंगे हम लोग और एक फर्स्ट प्राइज़ देंगे. सेकेंड प्राइज़ की ट्रॉफ़ी है, ठीक है. एक सेकेंड प्राइज़ देंगे, एक फर्स्ट प्राइज़ देंगे. तो हालांकि 3 ही पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि हम लोग 2 लोगों को प्राइज़ दे रहे. तो 3 में 2 को प्राइज़ देना बहुत बड़ी बात. तो सेकेंड प्राइज़ जिनको मिला है उनका नाम है, जिनको 17 मार्क्स मिले है ना, 18 मिले. हाँ, आप जाग रहे सर, देखो गलतियाँ ऐसे करेक्ट की जाती है. सेकेंड प्राइज़ गोज़ टू, कोई बता सकता है?
Anyone? एक मिनट गेस करो आप लोग। अब वो तो जज है, उनको। सेकेंड प्राइज गोज टू शेख आफरीन। I request Zulfikar sir to give this award. Everyone, big round of applause for her. First prize is a cash amount, and first prize goes to, there was a very tough competition, and 1000 rupees cash amount plus trophy plus certificate, and it goes to, any guesses? Nooreen Fatima, जिनको सर ने 19 मार्क्स दिए। ये अभी भी कैरेक्टर में नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लैप फॉर हर।